Hello students, today we are going to discuss the combination of capacitors, okay? First, series combination. Series combination of capacitors, okay? Now, sirs, take a careful look. Now, sirs, these are the three capacitors having the capacitances, say C1, C2 and C3. They are connected between the points, say A and B. Clear? Now, if you have to move from the point A to the point B while crossing the capacitors, okay? Clear? And if there exists only the single path, then the capacitors are said to be connected in series with each other. Got it, sirs? अगर समझ नहीं आया तो मैं डिफरेंस लेकर समझाता हूं. देखिए, अब ध्यान से देखिए सर, दोनों को कंपेयर करिए. Now, in the circuit, in the second circuit, here suppose say you have to move from the point A to the point B. That is, you have to solve the equivalent capacitance between the points A and B again. Okay? Now, when you are moving from the point A towards the point B while crossing the capacitors, then since the difference in this first circuit and the second circuit, okay? Take a careful look. Now, in the second circuit, there exists this point D. That is, when you are going from the point A towards the point B, you will first of all arrive at this point D. Now, clearly at this point D is called junction. Okay? At this junction, there exist two different paths. First path is via the capacitors C2 and C3. Okay? And the other path is via the capacitor C4. Got it? Clear? Now, we are going to say that there exists the branching at the point D. There exists the branching at this point D. Okay? Now, sirs, when there exists the branching at this point D, then we cannot say that the capacitor whose capacitance is C1, it is connected in series with C2 or C3. Got it, sirs? Clear? अब बेटा दोनों में डिफरेंस देखिए. In the first figure, when you are going from the point A towards the point B, first you crosses the capacitor whose capacitance is C1, then you crosses the capacitor whose capacitance is C2, then you crosses the capacitor whose capacitance is C3, and then you finally arrive at the point D. Now, in this first figure, there does not exist any branching. Okay? There exists only a single path between the points A and B.
Okay, whereas in the second figure, when you are going from the point A to the point B, then there exists the two different paths. First path is from the point A, you start moving from the point A, you will cross the capacitor C1, okay, then there will exist the branching at this point D, okay. Now the first path is from the point A, you can go to the point D, then from this point D, you can move to the point E while crossing the capacitors, having the capacitances like C2 and C3. Okay, and the other path is this one. From the A point, from point A, you are crossing the first capacitor, you arrive at the point D, then you have to move along the upper branch, that is via the capacitance C4. Finally, you will arrive at the point E, then at the point B. Now, in this case, in the second case, we cannot say that this capacitor, whose capacitance is C1, it is connected in series either with C2, okay, or this capacitance C1 is not in series with C4. बात समझ आ गई बेटा? डिफरेंस समझ आ गया? जब ब्रांचिंग आ जाए, जिस जंक्शन पर ब्रांचिंग है, उस जंक्शन के साथ जो भी कैपेसिटर्स कनेक्टेड होंगे वो आपस में सीरीज में कभी नहीं हो सकते. सिंपल. ओके. So since in this situation, what are you going to say? That C1 and C2, comma C1 and C4, C1 and C2, C1 and C4. Got it? If you are moving along this path, the branching exists at this point D. Clear? So C1 and C2, they are not in series with each other. When you are moving along this path, then again there is the branching at the point D. So C1 and C4, they are also not in series with each other. They are not in series with each other. ये बात समझ आ गई? तो फ्रेंड्स, अभी हम कर रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सीरीज में कब होगा और सीरीज में कब नहीं होगा. तो जब सीरीज में नहीं है तो ये मत सोचना कि पैरेलल में है, ऐसा नहीं होता. मिक्स ग्रुपिंग भी होती है. पल्ले पड़ गई बात? तो अभी हम कर रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन. सीरीज कब होता है और सीरीज कब नहीं होता, बस ये डिफरेंस क्लियर करिए. फिगर फर्स्ट में, ये फिगर फर्स्ट है, ये फिगर सेकंड है. तो फिगर फर्स्ट में ध्यान से देखिए, ये स्टोरी इन फिगर सेकंड है, ओके. और फिगर वन में C1, C2 and C3 are in series with each other. Got it? ये सिंपल सी बात समझ आ गई. तो अभी सबसे पहला बेसिक, सीरीज में कब है और सीरीज में कब नहीं है. तो बेटा जब सिर्फ एक ही पाथ एग्जिस्ट करे, when you are moving along the circuit from one point to the other, और सिर्फ अगर एक ही पाथ एग्जिस्ट करे तो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, ओके. और अगर आप किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा रहे हैं और बीच में कहीं ब्रांचिंग आ जाए, तो बेटा जिस जंक्शन पे ब्रांचिंग आई है उस जंक्शन के साथ जो कैपेसिटर्स आपस में कनेक्टेड होंगे, या उस जंक्शन के साथ जिन कैपेसिटर्स की प्लेट्स कनेक्टेड होंगी, वो कैपेसिटर्स आपस में सीरीज में कभी भी नहीं होते. गॉट इट? क्लियर? तो बेटा ये पॉइंट लिख लें, ओके. मैं डिक्टेट कर रहा हूं, हैश डाल के लिखिए. सबसे पहले दोनों फिगर को कॉपी करिए, दोनों फिगर्स को कॉपी करिए, लिखिए. पहला पॉइंट लिखिए, हैश डाल के लिखना. ये आइडेंटिफिकेशन टेक्निक्स हैं और ये आइडेंटिफिकेशन टेक्निक्स सीरीज कॉम्बिनेशन की जो यहां पर कैपेसिटर से पढ़ा रहा हूं
वही रेजिस्टर्स में भी एग्जिस्ट करेंगी करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। ठीक है, ओके ओके, लिखिए, हैश डाल के लिखिए, द कैपेसिटर्स are said to be connected in series with each other between the points A and B as in figure 1 full stop. There exists only one path while moving from one point towards the other point along the circuit. Got it? फुल स्टॉप डाल लें, दोबारा एच डालें, दोबारा एच डालें, एक और पॉइंट लिखें, इफ द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड between the points A and B as shown in the figure second, there exists two different paths while moving along the circuit from the point A towards the point B. Full stop. There exists branching at the junction D. The capacitors or the plates of the capacitors connected with the junction D are not in series with each other. बात समझ आ गई? ओके, तो कब सीरीज है और कब सीरीज नहीं है, बस ये क्लियर करें। ओके, सीरीज में क्या होता है, क्या क्या कैलकुलेशंस होती हैं, वो बताता हूं अभी। डन? समझ आ गई बात? अब आपके मन में आ रहा होगा कि इफ यू आर गोइंग फ्रॉम द पॉइंट डी टू द पॉइंट ई, डी से जब ई जा रहे हैं, ए और बी को भूल जाएं, तो डी से जब आप ई जा रहे हैं तो ध्यान से देखिए, आप पहले C2 को क्रॉस करेंगे, फिर C3 को क्रॉस करेंगे, डी और ई पॉइंट आ जाएगा। ओके, तो अब डी पॉइंट और ई पॉइंट के बीच में ब्रांचिंग नहीं है, और डी और ई के बीच में C2 और C3 कनेक्टेड है। दिखाई दे रही है? तो स्टूडेंट्स, क्योंकि डी और ई के बीच में कोई ब्रांचिंग नहीं है और C2 और C3 कनेक्टेड है डी और ई के बीच में, तो बेटा ये दोनों सीरीज में होंगे। कहां पर सीरीज में होंगे? बिटवीन द पॉइंट्स डी एंड ई। समझ आ गई बात? इसको भी मेंशन कर लें, इसको भी मेंशन करें, मैं यहां पे बिठा के लिख रहा हूं। In figure second, C2 and C3 are connected in series with each other. Between the points D and E. Simple.
बेटा दोनों फिगर्स को कंपेयर कर लें, सिंपल सी बात समझ आ गई है। फिगर फर्स्ट में सीरीज है, फिगर सेकंड में पूरे सर्किट में जितने भी कैपेसिटर्स दिखाई दे रहे हैं आप सबको सीरीज में नहीं बोल सकते। गॉट इट? ओके, अब ध्यान से देखिए। अब ये सेकंड पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, पॉइंट्स में करके लिखें। ये जो अभी किया था, दो हैशेस डलवाए थे, इसको फर्स्ट पॉइंट कर लें और लिख लें आइडेंटिफिकेशन फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, अंडरलाइन कर लें उसको, ठीक है। अभी सेकंड करके लिखें चार्ज फ्लो। चार्ज फ्लो इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ध्यान से देखना। Let us suppose ये पॉइंट A, let us suppose ये पॉइंट B, the capacitor C1, the capacitor C2, the capacitor C3, कैपेसिटेंसेस भी बोल सकते हैं। फिर से clearly all the three capacitors they are in series with each other between the points A and B, and if suppose the battery is connected between the points A and B. Let us suppose say V is the applied potential difference बोलेंगे। V क्या हो गया? Applied potential difference between A and B। बात समझ आ गई? ओके, ध्यान से देखिए। यहां पर इस पॉइंट को हम M लिख लेते हैं, इस पॉइंट को N लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, बैटरी का पॉजिटिव पोल M के साथ कनेक्टेड है, बैटरी का नेगेटिव पोल N के साथ कनेक्टेड है। पॉजिटिव पोल का पॉजिटिव पोटेंशियल होता है, नेगेटिव पोल का नेगेटिव पोटेंशियल होता है। समझ आ गई बात? ओके, अब ध्यान से देखिए। तो यहां पर पॉजिटिव पोटेंशियल है, ओके, और यहां पर नेगेटिव पोटेंशियल है। यहां पर पॉजिटिव पोटेंशियल है, यहां पर नेगेटिव पोटेंशियल है, ओके। लास्ट लेक्चर में एक इंपॉर्टेंट टिप दी थी, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया था मैंने आपको कि वायर से जितने भी पॉइंट्स आपस में कनेक्टेड होते हैं सेम पोटेंशियल पर होते हैं। अब ध्यान से देखिए, पॉइंट ए और पॉइंट एम वायर से कनेक्टेड है, तो दोनों पॉइंट्स ए और एम सेम पोटेंशियल पर होंगे। समझ आ गई बात? तो मतलब क्या हो गया? मतलब ये हो गया कि पॉइंट ए भी पॉजिटिव पोटेंशियल पे होगा, पॉइंट ए भी पॉजिटिव पोटेंशियल पे होगा, और ये पॉइंट बी और एन ये भी वायर से कनेक्टेड है। अब एन क्योंकि नेगेटिव पोटेंशियल पे है तो बी भी नेगेटिव पोटेंशियल पर होगा। समझ आ गई बात? ओके, अब सर्किट को देखें आप सर्किट को देखें, सर्किट को देखें। कैपेसिटर्स having the capacitances C1, C2 and C3, they are connected in series with each other between the points A and B. And if suppose you are moving from the point A towards the point B, you are going from positive potential towards the negative potential. तो बेटा पोटेंशियल का वैल्यू डिक्रीज होता जा रहा है। समझ आई बात? अब ध्यान से देखिए। अब जब ये सर्किट कंप्लीट है, इसको बोलते हैं क्लोज सर्किट। क्या बोलते हैं इसको? क्लोज्ड सर्किट।
क्लियर? जब सर्किट क्लोज होता है तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, आपने हमेशा बैटरी के पॉजिटिव पोल से प्लस क्यू चार्ज निकालना है और बैटरी के नेगेटिव पोल में प्लस क्यू चार्ज डालना है। समझ आ गई बात? अब देखिए, लेट अस सपोज प्लस क्यू चार्ज बैटरी के पॉजिटिव पोल से निकलेगा, तो प्लस क्यू चार्ज आपको बैटरी के नेगेटिव पोल में पहले ही डाल देना है। ओके, अब बेटा ये चार्ज वायर से फ्लो करेगा, ओके, और आगे जाएगा। तो यहां से प्लस क्यू आएगा, ये प्लस क्यू चार्ज फर्स्ट कैपेसिटर की लेफ्ट वाली प्लेट पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, राइट वाली प्लेट पर इंडक्शन की वजह से नेगेटिव चार्ज इक्वल अमाउंट में इंड्यूस होगा और जो इंड्यूस पॉजिटिव चार्ज है फ्लो कर जाएगा। बात समझ आई? तो यहां से देखिए प्लस क्यू चार्ज आया था, लेफ्ट वाली प्लेट पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, राइट वाली प्लेट पर माइनस क्यू इंड्यूस हो जाएगा, जो इंड्यूस पॉजिटिव चार्ज होगा वो वायर से फ्लो कर जाएगा। गॉट इट? ओके, अब क्या होगा? अब बेटा नेक्स्ट कैपेसिटर की लेफ्ट वाली प्लेट पर भी पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, राइट वाली प्लेट पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा इक्वल अमाउंट्स में, और जो इंड्यूस पॉजिटिव चार्ज फर्दर फेज पे होगा वो फ्लो करेगा। तो प्लस क्यू चार्ज फिर फ्लो करेगा, प्लस क्यू चार्ज फिर आगे जाएगा, लेफ्ट वाली प्लेट पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, राइट वाली प्लेट पर नेगेटिव चार्ज इक्वल अमाउंट में इंड्यूस होगा, और जो इंड्यूस पॉजिटिव चार्ज है वो फिर आगे फ्लो कर जाएगा। तो ये करके दिखाया है मैंने इंड्यूस पॉजिटिव चार्ज। अब ये इंड्यूस पॉजिटिव चार्ज क्योंकि स्वेल्स सर्किट क्लोज है तो इसलिए ये प्लस क्यू वायर में आगे फ्लो करेगा, तो ये प्लस क्यू आगे जाएगा, तो ये प्लस क्यू यहां से इस वायर से होते हुए फिर बैटरी के नेगेटिव पोल में आएगा। तो स्वेल्स जब प्लस क्यू चार्ज का फ्लो आप ऐसे मार्क करेंगे, ठीक है, क्लियर? अब क्योंकि सर्किट क्लोज था तो चार्ज फ्लो आपने पूरा कर लिया, मार्किंग पूरी कर ली है। अब बेटा जब चार्ज फ्लो कर रहा है आपको मालूम है पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। पॉजिटिव चार्ज कैसे फ्लो करता है? इट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब ध्यान से देखिए, पॉइंट ए का पोटेंशियल पॉजिटिव था, कोई भी वैल्यू मान ले, प्लस 10 वोल्ट मान ले, पॉइंट बी का पोटेंशियल नेगेटिव है, माइनस 10 वोल्ट मान ले, तो मतलब स्टूडेंट्स पॉजिटिव चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो कर रहा है। गॉट इट? अब जब पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, अब बेटा कैपेसिटर्स ने तो प्लस क्यू चार्ज स्टोर किया, ठीक है, जब कैपेसिटर चार्ज स्टोर कर रहा है कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है, डेफिनेशन था कैपेसिटर्स का। अब ध्यान से देखिए, इस वाले पॉइंट को मैं हाईलाइट कर रहा हूं, तो क्या बोलेंगे? मान लेते हैं सर कि ये पॉइंट डी है, मान लेते हैं ये वाला पॉइंट ई है, ठीक है। अब क्या बोलना है कि द कैपेसिटर हैविंग द कैपेसिटेंस C1 इज कनेक्टेड बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड डी। और याद रखें, बड़ा स्लो पढ़ा रहा हूं इसको, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आज की क्लास में हो रहा है। तो जितनी बातें बोल रहा हूं, जितने वर्ड्स बोल रहा हूं, सारे न्यूमेरिकल्स में कभी ना कभी यूज होंगे, तो ध्यान से बातें सुने। तो बेटा कैपेसिटर हुज कैपेसिटेंस C1 इज कनेक्टेड बिटवीन द पॉइंट्स A एंड D। कैपेसिटर ने चार्ज प्लस क्यू स्टोर किया, और जब आप A से D जा रहे थे तो बेटा पोटेंशियल तो डिक्रीज हो रहा था। कैसे पता? क्योंकि पॉइंट A का पोटेंशियल पॉजिटिव है, पॉइंट B का पोटेंशियल नेगेटिव है, फाइनली तो पॉइंट B पे जाना है। तो व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम A टू B देयर इज अ डिक्रीज इन पोटेंशियल। तो मतलब पॉइंट A का पोटेंशियल जो कुछ भी होगा, पॉइंट D का पोटेंशियल उससे तो पक्का कम होगा, ठीक है। जैसे यहां पे मान लेते हैं प्लस 10 वोल्ट,
यहां पे मान लेते हैं प्लस 5 वोल्ट, तो पोटेंशियल तो डिक्रीज हो गया। तो मतलब बेटा ए और डी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा। आप क्या बोलेंगे कि V1 इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड डी। बेटा चार्ज था, कैपेसिटेंस था, इसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस है। गॉट इट? अब आगे चलते हैं। अब जब आप पॉइंट डी से पॉइंट ई तक जा रहे हैं तो कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस C2 है उसने भी चार्ज प्लस Q स्टोर किया हो। ओके, फिर से वही बात कि व्हेन यू आर गोइंग फ्रॉम D टू E अगेन देयर इज द डिक्रीज इन पोटेंशियल। अब बेटा इसका पोटेंशियल आपने प्लस 5 वोल्ट माना था, तो इसका पोटेंशियल आप 0 वोल्ट मान ले, तो पोटेंशियल में तो डिफरेंस आ गया। तो फिर से स्टूडेंट्स कुछ तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। मान लेते हैं लेट अस सपोज से V2 इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स D एंड E। गॉट इट? तो क्या बोलेंगे? द कैपेसिटर हुज कैपेसिटेंस इज C2 इज कनेक्टेड बिटवीन द पॉइंट्स D एंड E। सिंपल बात समझ आ गई? कैपेसिटेंस है, चार्ज स्टोर किया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस है। गॉट इट? अब फिर से आगे चलते हैं। नाउ द कैपेसिटर हुज कैपेसिटेंस इज C3 इज कनेक्टेड बिटवीन द पॉइंट्स से E एंड P। कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस C3 है कहां पर कनेक्टेड दिखाई दे रहा है? E और B के बीच में। कैपेसिटर ने चार्ज स्टोर किया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस फिर से होगा। Let us now suppose V3 is the potential difference between the points say E and P. Got it? Okay, अब ध्यान से मन की आंखें खोल के देखें। अब ध्यान से देखें, सीरीज कॉम्बिनेशन में एक इंपॉर्टेंट स्किल दे रहा हूं। बेटा जब भी कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, लास्ट टाइम बताया था कि सिर्फ एक ही पाथ होता है, तो वो बात यहां पे भी होल्ड करेंगे। सिर्फ एक ही पाथ होता है चार्ज फ्लो के लिए फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर। अब कैपेसिटर्स कहां पे कनेक्टेड हैं? कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी, सो देयर एग्जिस्ट ओनली वन पाथ फॉर द चार्ज फ्लो। पहली बात क्लियर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अब क्योंकि चार्ज फ्लो के लिए सिर्फ एक ही पाथ है, ठीक है, तो हर कैपेसिटर पर सेम अमाउंट में चार्ज एग्जिस्ट करेगा। क्लियर? हर कैपेसिटर ने सेम अमाउंट में चार्ज स्टोर किया होगा। दूसरी बात समझ आ गई? क्लियर? तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जब बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन के अक्रॉस अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जाता है तो बेटा पोटेंशियल डिक्रीज होता है। पोटेंशियल डिक्रीज होता है व्हेन यू आर गोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर। क्लियर? अब बेटा पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है तो जिसकी वजह से क्या होगा कि हर कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा। समझ आई बात? अब मैं वर्ड्स में लिखवा रहा हूं, आप लिख लें। पहले तो ये फिगर कॉपी कर लें एक बार। डन? लिखें, in series combination there exists only one path for the charge flow and same charge is stored by every capacitor of the series combination. Done? ओके? क्लियर? हैश डाल के एक काम करें, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और दे रहा हूं, उसे भी लिख लें। Whenever the capacitors are connected in series with each other, and some potential difference is applied across the series combination,
then there is the decrease in potential when every capacitor is crossed. When every capacitor is crossed while moving from one point to the other. ब्रैकेट में लिखें से while moving from point A towards the point B. ठीक है, ओके, ये बात समझ आ गई, चार्ज फ्लो समझ आ गया। चार्ज फ्लो समझ आ गया। अब ध्यान से देखें, अब जो दे रहा हूं स्टूडेंट्स, ये स्किल है, आप इसको शॉर्टकट भी कह सकते हैं, मैं इसे स्किल बोलूंगा। ओके, देखिए, let us suppose we are having only two capacitors. We are having only two capacitors, say C1 and C2, which are connected in series with each other between the points A and B, and let us suppose say V is the applied potential difference. Clear? Now the charge on the first capacitor is supposed to say plus Q. The charge on the second capacitor is also say plus Q. Plus Q charge अभी सिखाया था, बैटरी के पॉजिटिव पोल से निकालना है, बैटरी के नेगेटिव पोल में डालना है। ठीक है? Now there will exist the potential difference between the plates of the capacitors. Clear? Now, for capacitor C1, we can say that Q is equals to say C1 V1. Okay? And for capacitor C2, Q is also C2 V2. बेटा पहले कैपेसिटर पे चार्ज कितना है? प्लस Q. सेकंड कैपेसिटर पे चार्ज कितना है? प्लस Q. Okay? So we are just using the definition for capacitance. Now, we can clearly say that the C1 V1 it is equals to C2 V2. Okay, so C1 divided by C2 is equals to V2 divided by V. याद रखें बेटा, greater the capacitance smaller the potential difference. Greater the capacitance smaller is the potential difference. इसको याद रखें। Clear? मतलब देखिए, if suppose say C1 is greater than C2, अगर बेटा C1 C2 से बड़ा होता तो C1 by C2 would be greater than 1, यानी रेशो 1 से बड़ी होती। अब यानी रेशो अगर 1 से बड़ी होती तो V2 by V1 it would be greater than 1. ओके, मतलब क्या हो गया? मतलब हो गया कि V2 would be greater than V1. ओके, अब ध्यान से देखिए क्या किया, C1 is greater than C2, तो क्या आया? V2 is greater than V1. बेटा अगर कैपेसिटेंस ज्यादा है तो पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा। गॉट इट? समझ आ गई बात? वर्ड्स में लिख लें, कॉपी कर ले पहले ये कैलकुलेशन, ये इंपॉर्टेंट टिप है। ग्रेटर द कैपेसिटेंस स्मॉलर इज द, मैं मिटा रहा हूं इसको, जल्दी से कॉपी करें, या फिर एक काम करिए, मैं वर्ड्स में बोल रहा हूं आप लिखें, मैं वर्ड्स में बोल देता हूं आप लिखें। Whenever the capacitors are connected in series combination, whenever the capacitors are connected in series combination with each other, and some potential difference is applied across the combination, then greater the capacitance, smaller would be the potential difference
between its plates, between its plates. बात समझ आ गई? ओके ओके. Now बेटा ये जो मैंने अभी चार्ज फ्लो सिखाया है आपको, जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ये आपको चार्ज फ्लो करना पड़ेगा जैसे मैंने किया है. पोटेंशियल डिफरेंसेस मार्क करने पड़ेंगे क्योंकि कैलकुलेशंस आएंगी. ठीक है. नाउ एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस in series combination. ओके. तो मैं तो छोटे में बनाऊंगा फिगर, ठीक है, आप बड़ा फिगर बनाना. जल्दी से कॉपी कर लें फिगर. कॉपी करिए. डन. Considerations लिखें. Consider the capacitors having the capacitances C1, C2 and C3 connected in series with each other between the points A and B. Full stop. Let V, capital V, let capital V be the applied potential difference across the series combination, and plus Q be the charge on each capacitor. Full stop. Let V1, V2 and V3 be the potential differences between the plates of the capacitors respectively. ओके. अब ध्यान से देखें. अब देखिए पॉइंट ए और पॉइंट एम वायर से कनेक्टेड है तो दोनों का पोटेंशियल सेम. वी एम इट इज इक्वल्स टू वी ए. क्लियर. पॉइंट बी और पॉइंट एन वायर से कनेक्टेड है इसलिए पोटेंशियल सेम. सो वी एन इज इक्वल्स टू से वी बी. बात समझ आ गई? दिस इंप्लाइज दैट Vm माइनस से Vn इज इक्वल्स टू Va माइनस Vb. अब ध्यान से देखिए. Vm माइनस Vn, Vm माइनस Vn कितना होगा? अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस. नाउ Vm माइनस Vn, इट इज द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस.
वी ए माइनस वी बी। अब ए टू बी जाइए, ठीक है, और वी ए माइनस वी बी को सॉल्व करिए। अब ध्यान से देखिए, ए और डी के बीच में V1 दिखाई दे रहा है, डी और ई के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V2 दिखाई दे रहा है, ई और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V3 दिखाई दे रहा है। तो टोटल वी ए माइनस वी बी कितना हो जाएगा? इट विल बी इक्वल्स टू वी ए माइनस वी डी प्लस वी डी माइनस वी ई प्लस वी ई माइनस वी बी। ये बात समझ आ गई? जब ब्रैकेट्स को एक्सपेंड करेंगे तो वी डी कैंसिल, वी ई कैंसिल, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी। क्लियर? लेकिन करना नहीं है, वैल्यूज डालनी है। डन? नाउ this VA minus VB is written as V1, A और D के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V1, then plus V2, D और E के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V2, then plus V3, E और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V3। समझ आ गई बात? ओके, अब दोनों वैल्यूज उड़ा के यहां पे डाल दें, जल्दी से कॉपी करिए। Now we can say that this V is equals to V1 plus V2 plus V3. Okay? यहां तक हो गया? नेक्स्ट लाइन में एक स्टेटमेंट लिखवा रहा हूं, लिखें लेट, ऐसे लिखें सी एस, लेट सी एस बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस of the series combination of the capacitors between the points A and B. Okay, and plus Q be the total charge drawn from the battery नेक्स्ट लाइन में लिखे बाय डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स में करना होगा। अब देखिए V टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, V टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है। क्लियर? तो जब टोटल पोटेंशियल डिफरेंस की बात करनी है तो टोटल चार्ज और टोटल कैपेसिटेंस को यूज किया जाता है, ठीक है। तो बेटा बैटरी से जो चार्ज निकला था वो था प्लस क्यू, मतलब टोटल चार्ज, इट इज इक्वल टू सी एस टोटल कैपेसिटेंस, जिसको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बोला, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। बात समझ आई? तो यहां से V का वैल्यू मिलेगा, V इज रिटन एज Q डिवाइडेड बाय सी एस। ओके, इसी तरीके से अब बेटा V1 की बात करते हैं। फर्स्ट कैपेसिटर को सिर्फ देखना है, आपके पास फिगर है, देखें उसको। फर्स्ट कैपेसिटर ने जो चार्ज होल्ड किया है, स्टोर किया है, दैट इज Q। बाय डेफिनेशन इट इज रिटन एज C1 V1। फ्रॉम इट V1 is written as Q divided by C1. Similarly, for the second capacitor, Q is written as C2 V2. This further implies that this V2 is written as Q divided by C2. Again, this Q is written as C3 V3. This further implies that this V3 is written as Q divided by C3. Okay? Now what you have to do, you have to just place all these values in this equation and then make the calculation. Okay, पेश करें Q divided by CS, Q divided by C1, Q divided by C2,
Q divided by C3. Q divided by CS. Q is made common. 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3. Okay. Now this Q and Q, they are cancelled out. Then we are left with 1 upon CS is equals to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3. तो बेटा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का ये रिजल्ट है. कॉपी कर लें. अब रिजल्ट को वर्ड्स में डिफाइन कर लें. मैं लिखवा रहा हूं, नोट करें. फ्रॉम द अबव वी कंक्लूड दैट द रेसिप्रोकल of the equivalent capacitance of the series combination is equal to the algebraic sum of the reciprocals of the individual capacitances of the capacitors connected in series with each other. Okay? दोबारा हैश डालिए. हैश डाल के लिखना. इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं. जब वैल्यूज डाल के, कोई भी 3 वैल्यू लेकर के डाल करके सॉल्व करके देख लेना. जो लिखवा रहा हूं वो मिलेगा आपको. हैश डाल के लिखिए. द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज ऑलवेज लेस देन द least value of the capacitance of the capacitors present in the series combination. दोबारा ऐश डालिए. Whenever the capacitors are connected in series with each other, then यार ये वाला पॉइंट और ऊपर वाला पॉइंट तो सेम हो जाएगा. एक काम करिए, ये जो अभी लास्ट में जो हैश लिखवा रहा था उसे काट के एक बार दोबारा लिखे. हैश डालिए, लिखिए. To decrease the capacitance, to decrease the equivalent capacitance लिखना. To decrease the equivalent capacitance between any two given points, the capacitors are to be connected in series with each other. Okay? तो आज लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं. और आज की सबसे इंपॉर्टेंट बात जो स्टार्टिंग में किया था, आज हमने किया है सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर्स कब होते हैं. सबसे पहला पॉइंट समझाया था. याद रखें, अगर कैपेसिटर सीरीज में नहीं हैं तो इसका यह बिल्कुल मतलब नहीं होता कि वो सारे कैपेसिटर्स आपस में पैरेलल में हैं. ठीक है, हो सकता है कि मिक्स्ड ग्रुपिंग हो, कुछ सीरीज में हो कुछ पैरेलल में हो. गॉट इट? तो क्या सीरीज में है क्या सीरीज में नहीं है, बस आज की क्लास में सिर्फ इतना करना था. पैरेलल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे.